سوال ہے امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ سوال ہے اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ حضرت اما حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اما حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ معذور پر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔
معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے 1 گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال ہے سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। कौन सी तीन चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं? सूफिया कराम फरमाते हैं कि तीन चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं: आज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, रियाकारी से इबादत करना, खालिक को छोड़कर खल्क से उम्मीद रखना। सवाल है, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब है, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल है, नबी के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है, गैब की खबर देने वाला। यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर किस मस्जिद की तामीर करवाई? मस्जिद नबवी तामीर की। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब है, अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंद शामिल हुए थे? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। सवाल है, बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है? जवाब है, कुरान मजीद। सवाल है, जन्नती सबसे पहले खाना क्या खाएंगे? जवाब है, पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब है, नमरूद के। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह शोहरत क्या है? गज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने की तजवीज़ जिससे कुफ़ार अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, उसका नाम क्या था? आप अलैहिस्सलाम की बहन का नाम दीना था। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। जमीन की पैमाइश करने वाले आले को क्या कहते हैं? जमीन की पैमाइश करने वाले आले को अस्तर लाभ कहते हैं। सवाल है, सरार से क्या मुराद है? जवाब है, मदीना से 3 मील के फासले पर एक चश्मा है। सवाल है, फतह मक्का के फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई?
जवाब है गज़वा हुनैन। सवाल है कुरान की वो कौन सी आयत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरे नबी पर नाजिल नहीं हुई। जवाब है वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरे नबी पर नाजिल नहीं हुई। सवाल है किस सहाबी ने 250 साल उम्र पाई। जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। कुल सुन्नत नमाजों की कितनी रखते हैं। 20 रकते। सवाल है कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है। जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। सवाल है मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है। जवाब है तकरीबन 10 मिनट के लिए। सवाल है नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है। जवाब है सूरह मायदा में। औरत की शादी कौन सी तारीख को करने से औरत खुश रहती है। औरत की शादी उसी तारीख को करनी चाहिए जिस दिन वो पैदा हुई हो, वल्लाहु आलम। सवाल है अबराहा जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था। जवाब है ईसाईयत का। सवाल है असल खंदक की खुदाई के बाद बास कबाइल ने इस खंदक को अपनी हिफाजत के लिए कहां तक बढ़ाया था। जवाब है मस्जिद गमामा तक बढ़ाया था। एक औरत का पर्दा तो बुर्का है लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सवाल है बनु अब्बास का असल बानी कौन था। जवाब है मंसूर। जिस्म के किस कतरे के गिरने से एक फरिश्ता पैदा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो शख्स वजू से पहले ये कलमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला वजू के हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा और वो कयामत तक कलमा पढ़ते रहेंगे और इन सब का सवाब इस शख्स को मिलेगा। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो, वल्लाहु आलम। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत में नमाज अदा की। जवाब है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। सवाल है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है।
जवाब है 7 मरतबा। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी? जवाब है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है खाना काबा पर हर साल नया गुलाब चढ़ाने की रस्म की इब्तिदा किसके दौर में हुई? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल है शैतान कितने साल तक खजांची रहा? जवाब है शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। गज़वा ओहद में कुफ्फार के पास 3,000 ऊंट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के घोड़े सिर्फ 2 थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर कौन सवार था? जवाब है अबू बरदा। सवाल है कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब है उम्मुल कुरा। सवाल है किस सहाबी के हिस्से में पहले मुँह मुबारक का तबर्रुक आया? जवाब है हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। बाकी के मुँह मुबारक तमाम मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म सादिर हुआ। सवाल है किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कौन सी 7 चीजें नमाज से पहले जरूरी हैं? जवाब है वो 7 चीजें ये हैं: बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबला की तरफ मुंह करना, नियत करना। सवाल है क्या औरतों की खतना करवाना जरूरी है? जवाब है इस्लाम में औरतों की खतना मिसल मर्दों की खतना के जरूरी करार नहीं दिया गया। नमाज चाश्त में कम से कम 2 रकते होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? 10 रकते।